Okay, so last lecture में we have discussed units, हाँ? So हमने कुछ ऐसा discuss किया था. There were 7 fundamental quantities. We call them base quantities or fundamental quantities, and we have defined units for them, or we have made units for them, right? The base units, we call them base quantities and base units, right? So quantities are what? Length, mass. If it is not readable, let me know. अगर छोटा दिख रहा है तो बताना. I'll write bigger. Length, mass, time, current, then temperature, then amount of substance, then next is luminous intensity. Units are what? Meter. Abbreviation is small m. Mass is kilogram. Abbreviation is small k and small g. Time is second. Abbreviation is small s. Current is ampere and abbreviation is capital A. It's a convention. Abbreviation of units made after the name of scientist should be capital alphabets, and rest should start with a small lowercase alphabet. Temperature, small k l e n, capital K in abbreviation. Amount of substance, mole, abbreviation is MOL. Luminous intensity, candela, CD. So these are base quantities and their units, right? So base quantities and their units are this. Now they say any quantity other than these ones can have unit in terms of base units. For example, name a physical quantity, name any quantity. Let us take Speed. volume, speed. Okay, let us say speed. So if you want to write unit of speed, so we know the expression for speed, and speed is what? Distance traveled per unit time, right? Now I want to make a unit for speed. So I can make many units. Distance traveled. Distance traveled is kind of length, right? And length is measured in meter. So I'll say meter. Time is what? Time is measured in seconds. So I'll say unit of speed is meter per second. You must be thinking this is so obvious why sir is teaching again or teaching us this. This is part of the syllabus. In fact, if you read books of foreign authors, they have not even written these down. उन्हें तो value नहीं दिया इसको. But our Indian boards में there is value. Even they ask question in entrance exams or school exams में पूछते हैं, right? But it is very obvious. Learning how to write unit of different quantities. Suppose you want to write unit for volume. Whatever formula you know of volume, let us write it as length into width into height. The length is kind of length, so meter. Width is kind of length, measured in meter. Height is kind of length, measured in meter. So it's meter cube. If I say density, density is a very important one. Density. Density is what? Mass per unit volume. Up. Mass ka SI unit is already there. We don't have to make one for it. So mass is measured in kg. Volume. Volume ke liye already we have a unit. I'll say kg per meter cube. Right? So this is unit of density. We can have unit for every known physical quantity. आप जो quantity का नाम बोलोगे, we can write a unit for it in terms of these units, right? Hence, these were named as base units and base quantities, and rest of the quantities whose units can be derived from
the units of one of these, one or more than one of the base quantities is known as derived quantity. Okay, so ये कहानी है आपका units का. So base units and derived units. 7 quantities have the units. Basic definition is there. इन सबका एक definition है. 1 meter कितना होता है? It's written in textbook. Proper definition बना हुआ है. But we don't need to remember this. मुझे भी खुद को याद नहीं. It's very lengthy and complicated definitions. Not important. Neither asked in any exams. Approximation, I know 1 meter is approximately this one of an adult hand. Starting from the tip of this middle finger to end of the other shoulder. Right? So ये होता है approximately 1 meter. Anyway, तो ऐसे ही सबकी definitions बना के रखिए. Definition of each of these units is made. कि 1 kg कितना होता है, 1 second कितना होता है, 1 ampere कितना होता है, everything is made. So with that definition is not important. You have to remember these definitions. Length को meter में measure करना, mass kilogram. And these are known as SI units, right? Okay, एक और word होता है subsidiary units. Subsidiary units. Subsidiary units. This is again a word in units. This is very important. Subsidiary units. Subsidiary units क्या होता है? See, अभी meter is this much, right? Now length of a highway, एक national highway, उसका unit, उसका length अगर मैं बोलूँगा तो meters में express करोगे तो it will be something like this: 2,72,528 meters. So it's not convenient. Instead of that, I'll say approximately 272 kilometers. अभी लेंथ ऑफ हाईवे के लेंथ में 100-200 मीटर तो वैसे ही चल जाता है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लेंथ ऑफ हाईवे एज 2,72,528 meters, I'll say 272 kilometers. Or sometimes it may be a bigger highway, so 12,72,000. Instead of that, I'll say 1,272 kilometers. तो ये क्या है? किलोमीटर इज नो न्यू यूनिट. किलोमीटर का अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है. It is known as subsidiary unit. क्या होता है? To make measurements much larger than the SI unit or much smaller than the SI unit. उनसे बहुत बड़े और बहुत छोटे मेजरमेंट निकालने के लिए they have said use multiples of 3. Multiples of 3 power of 10. I believe कुछ तो grammatical error यहाँ पे फिर भी चल रहा था. 10 raised to 3, 10 raised to 6, 10 raised to 9, 10 raised to -3, 10 raised to -6, and so on. So they say if you have to express or measure a quantity which is much larger than a meter, so use these third multiples of powers of 10. 10 cube, 10 raised to 6, 10 raised to 9, 10 raised to 12, and so on. So this was recommended by SI system. But other than these also are very frequently used. For example, ये आपको याद रखना. This is very important. Deci. This is important in chemistry. Physics में तो बहुत कम यूज होता है. फिर डेका, डेसी, डेका, देन सेंटी छोटे में, बड़े में हेक्टो, छोटे में मिली. These are important prefixes. यहाँ पे किलो, then मिलीगर, माइक्रो, फिर नैनो, फिर नैनो और छोटा पीको, और छोटा था फेमटो, ऑटो, और भी उससे छोटे होते हैं. इधर बड़े में किलो, मेगा, गीगा,
टेरा, एक्सा, बीटा. So ये कुछ prefixes and these are known as prefixes. These prefixes make a subsidiary unit. And their multiplier, you have to remember their multiplier. Let's write the multipliers. So deci ka multiplier is 10 raised to minus 1, centi ka it is 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 3. Many of you would have struggled in junior classes also with these units, right? These are subsidiary units. Minus 15, 10 raised to minus 18. ये दो छोड़ भी तो मुझे भी भूल जाते हैं कभी कभी, तो ये दोनों छोड़ भी तो चलेगा, but rest of them are important. ये सारे यूज होते हैं फिजिक्स में, ये यूज 10 raised to 12, 10 raised to 15, 10 raised to 18. Now I'll explain how it works. See, let me explain how it works. These are prefixes which you can apply to any of the units. For example, I can write 1 picosecond. I can write 1 picosecond. And what do you mean by 1 picosecond? So 1 picosecond is, pico means 10 raised to minus 12. So you can replace this by its multiplier. So 10 raised to minus 12 second. 1 gigagram. I can write 1 gigagram. So 1 gigagram is what? Giga is multiplier of giga is 10 raised to 9. So this is as good as 10 raised to 9. Replace giga by gram. So 10 raised to 9. So you can replace these prefixes by their multipliers, right? So this is how it works. 1 picosecond is 10 raised to minus 12 second. 1 gigagram is 10 raised to 9 gram, and so on. So these conversions, many of you would have suffered in junior classes also. I'll write 3-4 conversions, you do it. 1 kilosecond is how many nanoseconds? Convert this. 1 milliliter, millisecond. 1 millimeter, let us say 1 millimeter is how many kilometer? Then 1 nanojoule. 1 nanojoule is how many kilojoule? These three conversions you do. We get this mass. Okay, do these three conversions. It's very easy. You know the multipliers. You just have to use the multipliers and complete it. So 1 kilosecond is how many nanosecond? सोचो बहुत आसान है, यूनिटरी मेथड सी है, nothing else. 10 raised to 12 is the correct answer. See, 1 kilosecond, right? So kilo is replaced by what? Kilo is replaced by 10 raised to 3. ठीक है, यहाँ second लगा हुआ है ना. आपको क्या लगाना है? नैनो लगाना है. तो आप 10 raised to minus 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 raised to minus 9 से डिवाइड भी करोगे, तो 10 raised to 12 nano second. Now next one. 1 millimeter is how many kilometers? 1 millimeter is how many kilometers? Though these are not questions which will be asked in exams, but these are very important, and I have seen students suffer in this. अभी 2-3 बार देख लो आप, और ये याद तो करना ही है आप. इनमें से स्पेशली कौन से, ये फिजिक्स में यूज होता है, ये फिजिक्स में, ये दोनों में यूज होता है. डेसी भी केमिस्ट्री में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है. डेका नहीं यूज होता, हेक्टो नहीं यूज होता, किलो, मेगा, गीगा. सो दीज आर द वंस व्हिच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड. तो ये तो आपको भूलना ही नहीं है, याद ही रखना है. फिजिक्स में फिर एक बार पढ़ाऊंगा मैं, बट आई विल एडवाइज प्लीज रिमेंबर ऑल दीज subsidiary units, prefixes and multipliers. Okay. Bata, next one. 1 millimeter is how many kilometer? So 1 millimeter is 10 raised to minus 6 kilometer. How milli का वैल्यू आप डाल दो. मिली हटाना है वहां से, तो मिली हटाया, तो मिली का वैल्यू क्या है? 10 raised to minus 3.
मिली itself means 10 raised to minus 3. देन आपको किलो लगाना है, तो किलो से मतलब 10 raised to 3 से मल्टीप्लाई का, तो 10 raised to 3 से डिवाइड भी करें, तो 10 raised to minus 3 upon 10 raised to 3 is 10 raised to minus 6. Last one. 1 nanojoule is how many kilojoules? 1 nanojoules is how many kilojoules? से बड़ा आसान सा है, नैनो छोटा है, किलो बड़ा है, तो 1 से छोटी यूनिट आएगी, -12 इज करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा है। नैनो मीन्स व्हाट? 10 रेज टू -9, नैनो हटा दिया, उसकी जगह 10 रेज। ना आपको किलो लगाना है, तो किलो है तो उसको 10 रेज टू 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 10 रेज टू -12, दैट्स आंसर। सो दिस इज एन इजी टॉपिक, just by heart these prefixes and their multipliers. So by heart these prefixes and their multiplier. अब आ जाते हैं अगले टॉपिक में। एक बहुत ही बकवास सा टॉपिक है, डायमेंशंस। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होता है, केमिस्ट्री में तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। डायमेंशंस, डायमेंशंस आर नथिंग बट a word complementary to units. डायमेंशन बोल लो या यूनिट बोल लो, मतलब सेम ही है। फॉरेन ऑथर की बुक उठा के देखो, उनने तो इस वर्ड का नाम भी नहीं लिखा, ना फिजिक्स में लिखा है ना केमिस्ट्री में लिखा है। बट वंस अगेन हमारे बोर्ड में थोड़ा इस वर्ड को वैल्यू दी है, स्पेशली फिजिक्स में, यहाँ पे भी दी, केमिस्ट्री में भी दी है। तो व्हाट आर डायमेंशंस? डायमेंशंस आर powers, dimensions of any quantity are the powers of base units, the power to which base units shall be raised to obtain unit of quantity x. So dimensions of any quantity x, किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशंस आपको डिफाइन करने। द डायमेंशंस ऑफ एनी क्वांटिटी x आर द पावर्स टू व्हिच बेस यूनिट्स शैल बी रेज्ड टू ऑब्टेन यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी x। मतलब क्या हुआ? डायमेंशंस प्रॉपरली कैसे लिखते हैं? आई विल शो यू। सपोज डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आपको चाहिए, किसका चाहिए? डेंसिटी का। तो डेंसिटी के लिए बेस क्वांटिटीज में लिख देता हूँ, मास, लेंथ, टाइम। अब 3 ही लिखता हूँ, होते बहुत सारे 7 हैं, 3 लिखता हूँ। तो डेंसिटी का यूनिट लिखने के लिए मास के यूनिट का कौन सा पावर यूज करता है? What power of mass is taken to write the unit of density? m to the power 1. m to the power 1. मास रेज टू पावर 1। लेंथ का कौन सा पावर यूज होता है डेंसिटी का यूनिट लिखने में? -3, और t का 0 या छोड़ दो, तो सिर्फ यही 2 यूज होता है। तो डेंसिटी का डायमेंशंस आई से m1 l रेज टू -3, ये ऐसे लिखते हैं हम लोग डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। बहुत आसान सी चीज है, दिस इज नथिंग न्यू, इट्स जस्ट सेम थिंग रिटन इन अदर फॉर्मेट। मैं कहता हूं आपको किसी के यूनिट्स पता है, मतलब आपको उसके डायमेंशंस पता है। इफ यू नो द डायमेंशंस यू कैन राइट इट्स यूनिट। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम का मुझे यूनिट पता है, दैट इज मीटर क्यूब, तो मुझे उसका डायमेंशन पता है, लेंथ का पावर 3। ये डायमेंशन हो गया, ये यूनिट हो गया। In fact, in many good books, you will see they have used the word complementary, sorry, synonym, not complementary, synonym. They say dimension and units are one and same thing. अलग से पढ़ना ही नहीं है उसमें कुछ, वो दोनों सेम ही है, right? So if you know the units, you know the dimensions. 2-4 क्वांटिटी लिख के मैं डायमेंशन आपको फिर से लिख के दिखा देता हूँ, फिजिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। Suppose you have acceleration.
या इधर की जो ज्यादा यूज होने वाली क्वांटिटी हो जाएगी स्पेसिफिक हीट लेते चलो स्पेसिफिक हीट तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है एनर्जी या हीट एनर्जी पर यूनिट मास energy needed to raise the temperature of unit mass by per degree rise in temperature. So energy is same as work. Work is what force into displacement. So I'll say force into displacement. नहीं समझ में आया तो बताना. And trust me, this is not very important. One should understand, but मैं तो कभी एग्जाम में नहीं पूछा आज तक. स्कूल एग्जाम्स में कुछ टीचर पूछते हैं फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन. सर केमिस्ट्री के लिए नहीं है बट फिजिक्स के लिए है ना. हाँ फिजिक्स में इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा. फिजिक्स में तो पूरा चैप्टर का नाम ही है यूनिट्स एंड मेजरमेंट. पूरा बड़ा सा चैप्टर ही है और जेई में उसके ऊपर एक हर साल क्वेश्चन आता है. नीट में भी आता है एवरीवेयर. सो मास हो गया कैंसल. एक्सेलरेशन इज व्हाट चेंज इन वेलोसिटी. दैट इज चेंज इन वेलोसिटी. डेल्टा वी लिख देता हूँ. चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो इधर एक टाइम ले लिया मैंने. ऊपर डिस्प्लेसमेंट है नीचे टेम्परेचर है. सर ये चेंज इन वेलोसिटी इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. तो lt माइनस 1 एक t टाइम डिस्प्लेसमेंट l टेम्परेचर केल्विन. तो L2 T माइनस 2 K माइनस. ये इसके डायमेंशंस हैं. किसके स्पेसिफिक हीट के. स्पेसिफिक हीट के डायमेंशंस हैं. L2 T माइनस 2 K माइनस. कोई पूछेगा यूनिट क्या है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन. ये यूनिट होगी. तो यूनिट दिखा दो आप या डायमेंशंस दिखा दो मतलब दोनों का सेम है. So some books use a word synonym for dimensions and units. Units and dimensions are no different words. They are one and same thing, right? You know the units, you know the dimensions. You know the dimensions, you can write the units. Next is what? Dimensional analysis. दो uses इसके आपके बुक में लिखे हुए हैं. मेरी नजर में भी वो इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट है डायमेंशनल एनालिसिस में. केमिस्ट्री की बुक में 2 यूजेस दिए हैं. फिजिक्स में 4 दिए हुए हैं. अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो जरूरत है वो पढ़ लेते हैं. डायमेंशनल एनालिसिस. 2 applications are given in this book. First is to find relation between units of a quantity in different system. Now, this is again nothing new for you. You have been doing this since junior classes. कैसे? फिजिक्स में आपने कई बार किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया. किसमें? मीटर पर सेकेंड में. कैसे करते थे? 1 kilometer is 100,000 meter. 1 hour is how many seconds? 60 into 60 seconds. ये हो गया आंसर. तो 1 kilometer per hour is 5/18 meter per. So this is how you used to convert. अब यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है. तो वंस अगेन आप देखोगे कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दी हुई है, इसीलिए और कोई बोर्ड्स में इसको वैल्यू इतनी नहीं मिली है. So this is nothing new. You have been doing this since junior classes, right? So 1 kilometer per hour is what? 5/18 meter per second. तो क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे? सपोज एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन का SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. CGS यूनिट, ये अलग अलग यूनिट्स के सिस्टम है, वहां पे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं. तो क्वेश्चन इज व्हाट इज कन्वर्जन? 1 SI यूनिट इज हाउ मेनी CGS यूनिट. तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
तो मीटर इज टू बी कन्वर्टेड टू सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड, यहाँ पे भी सेकेंड रखना है, 1 सेकेंड स्क्वायर, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is one of the applications of units and dimensions or dimensions. यही आपके बुक में डायमेंशन एनालिसिस नाम से टॉपिक लिखा हुआ है। सेकेंड एप्लीकेशन इंटरेस्टिंग है, और किसी को किया ना किया, मेरे को लाइफ में बहुत यूज किया है, हेल्प किया इसने। क्या लिखा हुआ है? राइटिंग रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। राइटिंग रिलेशन बिटवीन, ये बहुत यूजफुल है। मैंने कई बार क्वेश्चंस में, जेई में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो फॉर्मूला आपने कभी सुना नहीं होगा, आप खुद से बना सकते हो अगर यू आर गुड इन डायमेंशंस एंड यूनिट्स। राइटिंग रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। कई बार ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशंस है, हमेशा नहीं काम आता है, बट मेनी अ टाइम्स इट हेल्प्स। हाउ? सपोज करो आपको एक सिंपल पेंडुलम है, इट्स वेरी कॉमन एग्जांपल गिवन इन ऑलमोस्ट एवरी बुक। सिंपल पेंडुलम दिया हो, ठीक है, तो पेंडुलम का आपने टाइम पीरियड देखा, T स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, L is length of pendulum. Time period you understand, na? Time taken by pendulum to complete one oscillation. Length of pendulum, L is length of pendulum, and G is acceleration due to gravity. ठीक है, आपने कभी इसके रिलेशन के बारे में सुना ही नहीं। टाइम पीरियड, लेंथ और ग्रेविटी के बीच में कोई रिलेशन है क्या? आपको पता ही नहीं, बट देयर इज अ रिलेशन। ठीक, तो हाउ टू एस्टिमेट दैट, हाउ टू फाइंड दैट रिलेशन? आई विल टेल यू। तीनों के यूनिट्स लिखो। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। जी इज एक्सेलरेशन, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ इमेजिन what should I do with units of two of them to get the unit of third? चाहे तो इन दोनों के साथ मैं क्या करूं कि इसका यूनिट बन जाए, या इन दोनों के साथ क्या करूं कि इसका यूनिट बन जाए, या इन साथ क्या करूं कि इसका यूनिट बन जाए। सोचो और बताओ मुझे, किसके यूनिट को क्या करूं? वो क्या अलाउड है? स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट करना, क्यूब करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सिर्फ यही अलाउड है। So what should I do with units of two, any of the two, to get the unit of third one? L upon T square कर दो ना, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो L upon T square कर दो तो यूनिट बन जाएगी G की। तो T square is proportional to L by G, तो T is proportional to root L by G, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा जो आपको पता नहीं। तो ये फटाफट आपने उनके बीच में रिलेशन बना लिया। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, सिर्फ यूनिट्स से खेल के आप फॉर्मूला खुद से बना सकते हो। ये बहुत हेल्प करता है, मतलब बहुत। पहले तो इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज, मेरे टाइम में बहुत क्वेश्चन आते थे, एक एक सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आते थे। फिजिक्स का जब मैं एग्जाम देने गया था तो मेरे एग्जाम में 100 क्वेश्चन, राइट। उन 100 क्वेश्चन में से नहीं बोल के तो 15 to 16 क्वेश्चन तो मैंने डायमेंशन से सॉल्व किए थे। फॉर्मूला नहीं याद है, कोई बात नहीं। यूनिट्स याद है? हाँ याद है। वो यूनिट्स के इधर उधर करके देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, आंसर आ जाता है, राइट। तो मुझे पर्सनली तो इस फॉर्मूला ने बहुत हेल्प किया है, आपको भी हेल्प करेगा अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हो, जब प्रैक्टिस करोगे। अजीब सा एक फॉर्मूला होगा जो आपने कभी शायद सुना भी ना हो, मिस हो गया हो, स्किप हो गया हो, तो वो टाइम में आप सिर्फ यूनिट्स देख के फॉर्मूला वहां पे फटाफट बना सकते हो। तो अभी आपने टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का कोई फॉर्मूला नहीं सुन रखा था, राइट। अगर कोई आईसीएससी से है तो उसने सुना होगा, बाकी सीबीएसई और अदर बोर्ड्स में नहीं था। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। तो 2 पाई आपका कांस्टेंट हो गया, रूट एल बाई जी आप खुद से निकाल सकते हो। ये चीज अगर नहीं समझी है तो प्लीज मुझे बताना, ये इंपॉर्टेंट है। इतनी मेहनत जब हम लोग कर ही रहे हैं तो ये अच्छे से समझ लेना।
ये काम आता है। एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब क्या? स्टैटिक लिक्विड कॉलम है। हाँ, ये वर्ड भारी भारी लगते हैं, मतलब कुछ खास नहीं है। हाँ, ये आपने 8th में पढ़ा होगा। जब आप पानी के नीचे जाते हो तो प्रेशर बढ़ता जाता है, राइट? तो उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वो किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, हाइट पे या डेप्थ पे होता है, ये डेप्थ पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डेप्थ एंड डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये काम आपका है कि इन चारों के बीच में रिलेशन निकालो। किसके? प्रेशर, डेंसिटी, डेप्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चाहिए तो सबका ऐसा यूनिट लिख देता हूँ। इसका ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, डेप्थ का हो गया मीटर, इसका हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका हो गया केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Derive relation between pressure, gravity, depth and density of the liquid। बड़ा आसान सा रिलेशन है, फटाफट बताओ। बस इन्हीं की यूनिट से खेलना आपको। किसी को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, ये आना चाहिए। कोशिश करो, चाहे देखो इसको इसको और इसको लेके केजी केजी डिवाइड करवा दो, केजी हट जाएगा। चाहे तो दिस अपॉन दिस करो, चाहे दिस अपॉन दिस। फिर देखो सेकंड स्क्वायर भी हटाना है तो फिर आपको दिखने लगेगा। करो। चार में से कोई भी तीन की यूनिट से खेलो, स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट करो, डिवाइड करो, क्यूब करो, जो करना है करो, रिलेशन बनाओ। इधर देखो, ठीक, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, केजी पर मीटर, इसको डिवाइड कर रहा हूं, मतलब पी बाय रो लिख रहा हूं मैं, इसको 1 मीटर क्यूब बाय केजी हो गया। ठीक, केजी केजी कट, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो इससे भी डिवाइड कर दो, इस पूरी चीज को जी से भी डिवाइड कर दो, तो 1/g का तो सेकेंड स्क्वायर कट, मीटर कट, कुल मिला के बच्चा मीटर, मीटर एट डेप्थ। हाँ वही। हाँ तो फॉर्मूला बन गया, राइट? ओके, सो आई होप ये समझ में आया आपको। इट्स जस्ट मतलब यूनिट से खेलना है आपको। दो तीन की यूनिट देख के फोर्स की यूनिट बनानी है, तो उससे यू विल बी एबल टू राइट अ रिलेशन बिटवीन दोज फिजिकल quantity. So these are two applications of units or say dimensions, right? Okay, अब देखो error, या पहले मेजरमेंट लिखता हूं मैं, वर्ड मेजरमेंट समझाता हूं आपको। पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है मेजरमेंट क्या होता है, फिर से थोड़ा सा बोलता हूं। सी, measurement is the biggest challenge of science। मेजरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइंस के लिए। जो भी थ्योरीज आप लिखते हो, दोज all are proved or laid down on the basis of measurements। आप साइंस के लैब में जाओगे, साइंस के लैब में यू डोंट डू एनीथिंग अदर देन मेजरमेंट। आप सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट करते हो। अगर आप लैब में जाते हो, कुछ प्रैक्टिकल्स करते हो, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हो, लेट इट बी ए फिजिक्स प्रैक्टिकल और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, इन almost every practical what you do is you do some measurements। आप टाइम पीरियड निकालोगे, डेंसिटी निकालोगे, मास निकालोगे, व्हाटएवर, तो एक्चुअली यू आर डूइंग सम मेजरमेंट। तो मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेजरमेंट में जो चैलेंज है, नहीं, दो बहुत बड़े चैलेंज होते हैं। वन इज एक्यूरेसी and other is precision। These are two challenges in measurement, one accuracy and precision। तो पहले तो एक अच्छा सा स्टेटमेंट बोलता हूं मैं, no measurement is 100% accurate। No measurement is
100% एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट कुछ भी नहीं होता है। टू योर सरप्राइज, इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ 10 सेंटीमीटर, आप जिंदगी में 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। आप कोशिश करोगे, आप स्केल लाओगे, बोलोगे सर ये है पक्का 10 सेंटीमीटर, बट अगर फिर मैं स्केल और ये पेन लाइन दोनों को माइक्रोस्कोप के ऊपर रख के देखूंगा ना, तो या तो ये पक्का 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा या 10 से कुछ थोड़ा कम होगा। बोलोगे नहीं नहीं सर ऐसे कैसे, ठीक है वो माइक्रोस्कोप में नहीं है, और बड़ा माइक्रोस्कोप लेके आओ, उसमें कुछ अलग होगा। और तो और छोड़ दो, ये आपने ये 0 सेंटीमीटर मार्क है एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर मार्क, राइट, ये 0 सेंटीमीटर है। जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये लाइन आपकी थिक होगी, दिस लाइन वुड बी अ थिक लाइन, यही जो अभी दिख रही है ऐसी, बाद में आप देखोगे तो ऐसी दिखाई देगी, राइट। तो ये लाइन का में आपने कहाँ पे रोका है, यहाँ रोका, यहाँ रोका, यहाँ रोका, कहाँ रोका। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगेगा आपको शुरू में, बट एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि एरर नाम की एक चीज होती है। तो एरर नाम की एक चीज होती है, they say error will always be part of, error will always be part of measurement, errors हमेशा रहेंगे measurements में, errors will always be part of measurement, errors are different from mistakes, errors are different from mistake, different from mistakes. Mistakes are what we do because of our casual behavior. So by being more careful, we can eliminate mistakes. हो सकता है हमसे गलतियां ना हो, but error कुछ अलग चीज होती है. Error is always a part of measurement. No measurement is 100% accurate. तो अगर ये वर्ड का ये दो स्टेटमेंट्स आपको नहीं डाइजेस्ट हो रहे हैं, ऐसे कैसे सर मैं तो बड़ा अच्छा मेजरमेंट निकाल लेता हूँ, तो मुझे बताना, मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताऊंगा, नहीं तो फिर फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, बिकॉज फिजिक्स में उस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सा टॉपिक होता है। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर, नो मेजरमेंट इज 100% एक्यूरेट और एरर विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ मेजरमेंट एंड एरर इज डिफरेंट फ्रॉम मिस्टेक, तो मुझे बता देना। आई विल गिव सम एग्जांपल्स टू कन्विंस यू कि व्हाई दीज 3 स्टेटमेंट्स, ठीक है। एनीवे, अगर आ गया तो आगे बढ़ता हूँ। तो एरर्स कभी भी एलिमिनेट नहीं होते, एरर्स कभी भी एलिमिनेट नहीं होते। उनमें से एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल होता है लीस्ट काउंट। क्या? लीस्ट काउंट। भगवान ने एक मेजरमेंट बनाई, मैंने नहीं, भगवान ने, भगवान को ही बस मालूम है वो कितनी थी। तो 2.3175281 मीटर है, ठीक है। ये भगवान की बनाई हुई मेजरमेंट है। क्या मेजरमेंट है? 2.3175281 मीटर। ये मैंने नहीं बनाया है, ये आपने नहीं बनाया, ये किसने बनाया? भगवान ने। इसको मेजरमेंट करने के लिए मैंने आपको भेजा कि भगवान का बनाया हुआ एक पेड़ था जो इतने हाइट का था। मैंने बोला बेटा जाओ इसको हाइट मेजर करके लाओ। तो आपने एक डिवाइस लिया जिसमें एक एक मीटर के मार्किंग्स, कितने की मार्किंग है? स्मॉलेस्ट मार्किंग आर ऑफ मीटर, तो उसमें सिर्फ मीटर की मार्किंग, मीटर मार्किंग है। तो आप इसका लेंथ क्या रीड करके आओगे? What will you read to 2.3175281 मीटर? आप क्या रीड करोगे इसका? जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो आप ले सकते हो उससे वो मीटर है, तो आप 2 मीटर बोलेंगे, उसी लेंथ को यू विल रीड इट एज 2 मीटर। बोलो ये ऐसे कैसे सर? मैं बोलूंगा 2 से थोड़ा एक्स्ट्रा। अरे तो कितना एक्स्ट्रा? आप यही बोल सकते हैं ना सर 2 से थोड़ा ज्यादा है, कितना ज्यादा नहीं मालूम है, क्योंकि वहां स्केल में आपके मार्किंग ही नहीं है। अगर आपने एक ऐसा मीटर लिया है जिसमें 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर है किसकी, उसमें एक मीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, तो उसका लीस्ट काउंट हम लोग वर्ड यूज करते हैं। आई यूज द वर्ड लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट बेसिकली स्टैंड्स फॉर द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट व्हिच कैन बी मेड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट एक वर्ड है, वो हर एक डिवाइस का कुछ होता है।
जैसे आपकी वॉच है, नॉर्मल वॉच, कौन सी जो नॉर्मल वॉच है, उसका लीस्ट काउंट होता है 1 सेकेंड। वेरएस अगर डिजिटल वॉच लोगे आप, स्टॉप वॉच अगर आप देखोगे मोबाइल का, तो उसमें 0.01 सेकेंड तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं, राइट। तो वो क्या हो जाता है, उसका लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट इसका 1 मीटर था। अगर आपको एक ऐसा डिवाइस दिया जिसका लीस्ट काउंट 0.1 मीटर है, हाँ, 1 मीटर की स्केल में ऐसा 10 पार्ट्स बने हुए, तो उसके हेल्प से आप इसका लेंथ क्या निकालते थे? व्हाट यू से इज दिस लेंथ? 2.3। 2.3 मीटर, आपको मालूम है भाई 3 मीटर है 0.3, उसके आगे अगर आपके पास उसमें 1 सेंटीमीटर तक की यानी 0.01 मीटर वाले ग्रेडिंग्स दी हुई हैं, तो आप इसको क्या रीड करते थे? 2.31। 2.32 मीटर। मैं आपको लगता था, मतलब 31 भी लिख सकते आप, मतलब मैं होता तो 32 बोलता था। मैं क्यों बोलता था? बिकॉज 1 से ज्यादा और बहुत ज्यादा मुझे 2 से क्लोज दिखता था। 3.1 सॉरी 0.312 के क्लोज दिखता था, सॉरी 3.32 के ज्यादा क्लोज दिखता था, मैं उसको 0.32 बोल रहा। अगर आपके पास 1 मिलीमीटर होता है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, लीस्ट काउंट, तो आप ये रीडिंग को क्या बोलते थे? 2.318 मीटर। अगर आपके पास 0.1 मिलीमीटर रीड करने का अरेंजमेंट होता है, तो आप इसको 2.3175 मीटर रीड। तो देखो वही लेंथ, क्या वही लेंथ अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जब निकाली गई तो अलग अलग लिखी गई। सेम लेंथ को मेजर किया है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, हाँ? सबसे पहले वाले को मीटर रॉड में, फिर सेकेंड वाले को मीटर रॉड विद 10 सेंटीमीटर मार्किंग, थर्ड वन मीटर स्केल बोलते हैं उसको, जिसमें 1 सेंटीमीटर की मार्किंग होती है। यूजुअली वी यूज अ वर्ड मीटर स्केल। फोर्थ वन ये रूलर है, हाँ? अगर आप अपने घर का मतलब जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो पेंसिल स्केल है उसको उठा के देखोगे तो उसमें 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट मार्किंग। दिस इज वर्नियर कैलिपर, ये भी है अपने सिलेबस में। वर्नियर कैलिपर्स से मैं ये निकालूंगा। एक होता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज जो होता है उसमें 0.01 मिलीमीटर की रीडिंग आती है। अगर वो मैं यूज करता था प्रिंसिपल, तो 2.3175 मीटर निकालता था। तो वही मेजरमेंट अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से आप अलग अलग रिपोर्ट करते हो, राइट। द क्वेश्चन इज विच वन इज करेक्ट? पहले तो कोई भी करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ देम आर करेक्ट, राइट, बिकॉज भगवान ने तो उसको इतना बनाया 2.317528। सो दिस इज द एग्जैक्ट मेजरमेंट, बट इनमें से अभी कोई भी मेजरमेंट इससे मैच नहीं करती, एग्जैक्ट मैच नहीं करती। तो नन ऑफ देम आर 100% एक्यूरेट, राइट। सब में ही कुछ ना कुछ एरर तो है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, बट एरर सब में बना हुआ है, राइट। समझा ना? तो अब मैं आपको समझाता हूं कि एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी मीन्स व्हाट? बीइंग क्लोज टू, एक्यूरेसी मीन्स व्हाट? व्हेन डू वी से मेजरमेंट इज एक्यूरेट? एक्यूरेट क्या होता है? जब वो ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज है, कि बहुत जो क्लोज होगा। इफ measurements are closer to true value or correct value, then we say measurement is more accurate. Say measurement is more accurate. और आप एग्जैक्ट वैल्यू से जितना दूर होगे उतनी एक्यूरेसी आपकी कम होगी, एरर उतना ज्यादा होगा, नहीं? तो एक्यूरेसी मीन्स व्हाट? बीइंग क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू, द ट्रू वैल्यू। जैसे भगवान की बनाई एक मेजरमेंट है 2.317528, तो वो क्या हो गया? ट्रू वैल्यू हो गई। अगर किसी का मेजरमेंट, किसी ने मेजरमेंट निकाला 2.3 और दूसरे ने निकाला 2.4, तो 2.3 वाला ज्यादा क्लोज दिख रहा है मुझे, तो आई विल से 2.3 इज मोर एक्यूरेट
than 2.4. ठीक है, तो ये तो खैर वर्ड्स में लिखा हो तो किसी को भी समझ आ जाता है. प्रिसिजन जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है. Many students think accuracy and precision are one and same thing. प्रिसीजन का मतलब ये नहीं होता. प्रिसीजन का मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत प्रिसाइज बात करता है सामने वाला, मतलब घुमा घुमा के बात नहीं करता, वो प्रिसाइज बात करता है, पॉइंट टू पॉइंट बात करता है. भले वो सही बोल रहा हो या गलत बोल रहा हो, भले वो सही बोल रहा हो या गलत बोल रहा हो, बट बात तो प्रिसाइज करता है. अगर लिटरेचर मीनिंग में मैं आपको लेके जाऊं तो दो फ्रेंड्स हैं, एक है, एक छोटा सा इंसिडेंट होगा ना कि आज उसने खाना नहीं खाया, तो फिर वो कैसे सुनाना स्टार्ट करेगा, क्या हुआ, मैं आज लेट उठा तो फिर डैडी गुस्सा हो गए, तो फिर खाना बना था बट मुझे खाने नहीं दिया. और दूसरा है, वो क्या बोल रहा है, आज खाना नहीं खाया. तो जो आज खाना नहीं खाया बोल रहा है वो प्रिसाइज है, और दूसरा क्या बड़ी लंबी लंबी कहानियां सुना रहा है, दूर दूर से बता रहा है. तो दैट इज व्हाट वी से इज लेस प्रिसाइज. तो प्रिसिजन इज डिफरेंट फ्रॉम एक्यूरेसी. This measurement is more precise than this one. ये एकदम 2.31753 मीटर. ये क्या है, this is less precise, right? ये 2.3 मीटर है. कहाँ आपने ये क्लोज वैल्यू. एक्यूरेसी का प्रिसिजन से लेना देना है बट बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है. तो ये जिसने रिपोर्ट किया इसने ऐसे ही बोल दिया 2 मीटर के आसपास. इसने क्या बोला 2.3 के आसपास है. ये एकदम प्रिसाइज बात है, 2.31753 मीटर. सो दिस इज मोर प्रिसाइज. तो प्रिसिजन का मतलब होता है, अगर मतलब दो तीन इसके स्टेटमेंट्स में बोलूंगा. पहला स्टेटमेंट जो अगर बुक्स पढ़ोगे आप तो उसमें लिखा होता है कि अगर आपकी 2, 3, 4 रीडिंग्स जो है भले सही है गलत है बट वो एकदम क्लोज आ रही है. आपने मेजरमेंट निकाली, 3-4 रीडिंग निकाली आपने, लैब जाओगे आप तो एक्सपेरिमेंट में 3-4 रीडिंग निकाली हमने, 2.314, 2.315, 2.314, 2.313, ये है. और एक दूसरा स्टूडेंट है उसने रीडिंग निकाली 2.3, 2.4, 2.3, 2.2. अब इनकी वैल्यूज में डिफरेंस देखो कितना वेरिएशन आ रहा है, 0.001 का, और यहाँ 0.1, 0.1, 0.1. तो यहाँ पे वेरिएशन जो है ज्यादा है, कंसिस्टेंसी कम. तो दिस इज लेस प्रिसाइज एंड दिस इज मोर. दूसरा एक स्टेटमेंट अच्छा बोलूंगा, ये जेई में कभी तो क्वेश्चन, जेई या तो किसी एंट्रेंस में पूछा था, प्रिसीजन हैज टू डू समथिंग विथ व्हाट. तो प्रिसीजन हैज समथिंग टू डू विथ लीस्ट काउंट. प्रिसीजन हैज to do something with least count of measuring instrument. लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा उतना ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट होगा. सो मेजरमेंट के लिए लीस्ट काउंट, सॉरी प्रिसाइज होना मतलब लीस्ट काउंट छोटा होना, राइट? So least count is a word which is related to precision of the instrument. तो instrument के precision का लेना देना किससे है? Least count से, right? आ रहा है समझ में? Least count कितना, जितना छोटा होगा उतना precise measurement होगा. अब देखो, precision and this one accuracy are two different words, but हाँ कहीं ना कहीं प्रिसाइज मेजरमेंट होगा तो एक्यूरेट होने का चांस ज्यादा है. डज नॉट इंप्लाइज कि वो एक्यूरेट होगा ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, वन हु इज यूजिंग से वर्नियर कैलिपर निकालना है 2.3175 मीटर. पता चला उसके वर्नियर में फॉल्ट है तो उसने इसको 2.5275 कर दिया. तो देखने में तो ये प्रिसाइज है बट ये एक्यूरेट नहीं है. उस केस में तो ये ज्यादा एक्यूरेट है भले लेस प्रिसाइज. आंसर एग्जैक्ट क्या था, 2.3175 तो इसने तो एक नॉर्मल स्केल यूज करी, 2.3 मीटर बता दिया. इसने वर्नियर कैलिपर निकाला 2.5275 मीटर निकाला, बट है तो गलत ना. तो हो सकता है इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी हो, कुछ रीजंस हो, उसके वजह से वो मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं आ पाए. बट यस, using precise instruments या precision in the measurement
ensures कि मतलब increases the chances of getting accurate results. ठीक है, चलो I'll stop.